So good evening, sir. Myself Silpa, and we are doing this session. It's called Mentor Mantra, where our guest lecture gives some spread some awareness of some topics that helps for the student who are like confused about what to do or not to do. They will not aware of many of these topics, so that's why we are starting this session. And today our guest lecturer is Mr. Manohar Kumar, who is a founder and speaker of innovation and research of organizations. And he is a true believer of science and dedicated to spread awareness of science. So we are very lucky to have you, sir, as a guest lecturer of our today's sessions. So we wanted to know about, sir, your journey. I am thankful to your team that give me such a powerful opportunity to share something. Yes. Okay. Yeah. I started my schooling from government schools and from my hometown is Ara. Ara is a city near Patna, capital of Bihar. And I completed my board plus got this list. When I started, I complete my plus two level education at Jain College, HD Jain College, Ara. And after that, I completed my graduation from Patna University in geography subject. Yeah. Okay, sir. But I am passionate about science, and I will happy to share these things because in graduation I studied uh, history and pole science as well as geography. But I am passionate about science, and you can say that a student of arts who is passionate with science. Yes, sir. Right. And after that, yes, sir. After that, I came here in BHU for post graduation, and in post graduation, geography was my subject. And after that, I qualified JRF exam, UGC NET, and I got JRF in geography, and now I am admitted in IIT BHU as a researcher scholar. Yeah, but here I will make research on science communication. Okay. Okay, and as well as in whole journey, when I was in class 8, I started to participate in many scientific programs named NCS, National Children's Science Congress and Nehru Science participate I participated in, and after that I used to go as a guide teacher. And actually, my district coordinator was named Harisankar sir, Dr. Harisankar sir. Then they went to America, and that post was vacant. They entered that NC, so feel that only books are printed
and this is not fruitful. So I started making video, and that video is nowadays used by Bigyan Prasar also to promote NCSC, National Children Science Congress. Yeah, this is a whole journey. And in class 12th, in class 12th year, uh, 2015, I established a organization, IRO, Innovation Right, and sir. Research Organization. Yes, sir. Yes. Yeah, and nowadays this organization work in whole India, till 20 states we have covered through this. Great. Yeah. So, yes. Science show. Actually, we run many programs. There is a program Science show Thank in you. which we make experiment. Yeah, Yeah. we perform live experiment on a stage, and these are out of syllabus. Actually, not on syllabus, out of syllabus also. And this is the glamour portion of science. If anyone tells that science is boring subject and only chemical reactions and it is only like that lab, but not if you visit one times science show, through science show, that you will say that no, science is a like magic. My tagline is science is logic, not magic. Right, sir. So okay. So, So if your audience go through IRO official, actually we are YouTube channel, IRO official, they will say many scientific experiments, and they may many reactions, concept. okay. Okay, so becoming a, at first you started as a career of arts, but now you are a scientist, like and founder of the innovation and research organization. So it's a great journey. Never confined myself any subject, and Yeah. when I got free, I used like Jyotish Vigyan also. Sanskrit is my also favorite subject. Yeah. Yes, sir. That's great, Yes. sir. Like after listening your journey now, all student like focus on their hobby and passion. It's not about you are for arts background, you are for science background. If your hobby and passion about something, then go for it. Then you will be become complete your goal. To share one thing that scientist Isaac Newton was a student of philosophy. Yeah, right, sir. Right, sir. Yeah. Okay. And many scientists that you will get someone was Deep Broglie. When we studied about, and names come, Deep Broglie is a scientist who was graduate in history Yes, subject. history. Yeah. History subject. So not matter what's your subject, we example of Elon Musk, Mm, who has not a formal education of rocket science. right. Yes, company rocket. Right, sir. It's great to listen. Yes, sir. Actually, sir, it's nowadays it's happened कि many students are there who are like in 10th, who are in 10th. So they are just मतलब वो लोग पढ़ते हैं खाली एग्जाम में हमको पास करना है. In that motive they are पढ़ते हैं. Like उन लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता इस चीजों के ऊपर. देखिए, हम जब बता रहे हैं एग्जाम में भी आज भी स्कूल ये था, तो ये ठीक है कि भाई आप रैंक वन बने रहिए, लेकिन सबसे चीज है कि वो सीखना चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं कि अभी के दिनों में या कभी भी कहीं आप तो डिग्री लेके घूम नहीं रहे। अब हमसे तो कोई ये नहीं पूछा, आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, तो आप कल आपने तो पूछा नहीं हमसे कि आपके मैथ में कितने नंबर्स थे, नहीं पूछे। राइट यानी सर. कि जो भी, हाँ, जो भी है वो व्यक्ति के व्यवहार में
प्रदर्शित होना चाहिए। आपका कोई मार्क्स सीट कहाँ है क्या है कोई नहीं देखने जाता। राइट सर। और इवन हमारे, हाँ, हमारे घर इतने सारे शील्ड वगैरह और ये सब मेडल्स हैं, तो कहाँ कोई देखने जाता है, दो चार चुका तोड़ देता है, और रोज टूटने पे ही दो चार लगा हुआ है। तो वही हम कह रहे हैं ना कि एक्चुअली आपका जो नॉलेज है वो आपके बिहेवियर में दिखता है। अच्छा, आप 100 में 100 नंबर लाते हैं और रास्ते में चलते समय कोई जानवर जा रहा है उसको मार देते हैं, तो हाँ मतलब आपने क्या सीखा? अच्छा, अब बाइक बस तुरंत निकलना है आपको, फटाफट निकला और पूरा एनर्जी कंजर्वेशन अपने बुक्स में फैन ऐसे ही छोड़ के निकल गए। तो हमारे कहने का मतलब है ना कि एजुकेशन जो है आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। और दूसरा चीज, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि देखिए साइंस वो जो है ये कोई जॉब नहीं है, ये हमने शुरू करी और हमने एक नया रास्ता बना दिया है, ठीक ना। हाँ अगर सर। आप कुछ अच्छा करेंगे तो आप खुद ही कोई नया रास्ता बना देंगे। जो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता वो फील्ड आप क्रिएट कर देंगे, है ना। तो हाँ ये सर। चीजें अपना पैशन देखिए। अब कोई सोचा था कि कोई हंसा हंसा के और $1 मिलियन इतना कमा लेगा? आप देखिए, हंसा, कपिल शर्मा है ना, हंसाता हाँ है, सर। हंसाता हाँ है। हाँ। वही चीज है, एनीथिंग में भी पैशन, और पैशन में भी एज ए कैरियर, कोई चीज जो है पैशन हो सकता है, और पैशन को कैरियर के रूप में देखिए। पहले चीज यही देखना है कि आपका पैशन कोई प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वैल्यू बना के देता है, तो फिर उसके बदले पैसे भी। अच्छा, जब जिस काम के वो पैसे आपको नहीं मिल रहा है, एज ए पैशन आप कर रहे हैं, उस काम के लिए अगर पैसे मिलेंगे तो समझ रही हैं हाँ आप, सर। इतना कुछ। बढ़िया काम कीजिएगा ना। क्योंकि बिना पैसे के हम साइंस वाला जो इवेंट करते हैं, तो हम्म। हालांकि हम चार, मतलब पहले तो ऐसे ही कर देते थे एज ए पैशन, हाँ लेकिन सर। ठीक, इट्स ओके। तो वही चीज है, आप पैसे मिले या ना मिले, आपको करके संतुष्टि होना चाहिए। हाँ और सर। बाकी जो क्रेज है, आईआईटी नहीं हुआ तो नीट नहीं हुआ, बच्चों में ये रहता है कि मेरा आईआईटी नहीं हुआ है, नीट नहीं हुआ। देखिए, अब एक्चुअली आईआईटी बीएचयू नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि में आप पहुंच ठीक है ना। हाँ हाँ, तो हाँ, एक्चुअली बाहर से लोग जितना बताते हैं ना आपको कि हाँ। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली सारे वो जस्ट एक एग्जाम है, और वो एग्जाम क्रैक करके, और कुछ लोगों को छांटना होता है क्योंकि सीट कम है, तो थोड़ा सा हम्म। लेवल बढ़ा दिए, ठीक है। अब यस। 10 रोटी है, 100 लोग हैं, तो कोई तो बहाना चाहिए ना, तो हम, हाँ हाँ, वो इसी को रोटी मिलेगा जो 5 किलो वजन उठा ले, ठीक है, जो ताकतवर है उठाएगा 5। तो जस्ट, अब ऐसा थोड़ी है कि जो 4 किलो उठाता है वो रोटी खाने का हकदार नहीं है। मतलब हम्म। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हम हाँ ये कहना सर। है कि सीट जो है मान लीजिए 10 है, और हाँ। बच्चे 100 हैं, जो जिसमें से 50 योग्य हैं, फिर भी 40 योग्य कहाँ जाएंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं। जहां भी आपको एडमिशन्स मिल रहे हैं, बस आप पढ़ लीजिए, पढ़ के कुछ आप नया कर दीजिएगा, खुद ही कुछ खोज लीजिएगा, ठीक है। हाँ अभी हाँ। इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, हम जॉब के पीछे किसी को सजेस्ट ही नहीं करते कि जॉब के पीछे जाए, ठीक है ना। क्योंकि जॉब में आप लग के और कुछ नहीं कर, हिस्ट्री में कोई ऐसा आदमी बताइए जो जॉब करता हो और उसका इतिहास आप पढ़ते हो, कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि आदमी जॉब कर रहा था और आपने उसका इतिहास पढ़ा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं। और क्यों? तो आप देख लीजिए ना कि आप 30-40 हजार, 50 हजार या 1 लाख के सैलरी पे अपने को कन्फाइन कर रहे हैं एकदम। हाँ, सोसाइटी में थोड़ा सा है। एक्चुअली यूपी बिहार से जो बच्चे हैं उनको थोड़ा कि हाँ जॉब ले लो, ये ले लो, कहने दीजिए। अगर आपको लगता है बेहतर कर सकते हैं, कोई समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, तो अभी एमबीए चाय वाला चाय बेच के करोड़पति बन गया। अब हाँ तो सर। कोडिंग और क्या क्या है ना। हाँ। हाँ सर, हाँ, वो बात तो वही सही। तो। हाँ, तो आप देखिए, ये चीज था, हम बताएंगे कि जो भी सब्जेक्ट में मन लगता हो किसी को, संस्कृत में हमको, हम क्लास 10th बाद चाह रहे थे कि हम 3 सब्जेक्ट लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और संस्कृत, क्योंकि मैथ पढ़ने में हमको आज भी मन नहीं लगता, और मैथ शुरू से ही हमको मन नहीं लगता सेम। है। हाँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैथ में कल है, और सबका अपना अपना स्किल होता है कि किस पे। हाँ तो अगर हमको बहुत अच्छा मन लगता है तो वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और संस्कृत, ठीक है। तो ये मन लगता था, लेकिन अब क्या है कि तीनों एक साथ ले नहीं सकते थे। अब कि अब चलो फिर ज्योग्राफी हम ले लिए, उसमें भी थोड़ा साइंस का था, तो हाँ। एज ए
तभी तो JRF, अगर हम प्रोफेसर आगे बनेंगे तो वो आर्ट साइंस और ज्योग्राफी में ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट वो एक थिंग है, वो दूसरा चीज है। हाँ, देखिए कभी भी कुछ भी मन हो ना उसको मारिए मत। जैसे हमको मन था कि हम थोड़ा म्यूजिक सीखें, हमने एक हारमोनियम खरीद लिया और कहीं फॉर्मल कि ना आप कोई गाना कहिए हम बजा देंगे, ठीक है ना, हारमोनियम पे। तो वो भी सीख लिए, स्किल सीखते रहिए, कुछ बैठिए मत। सबसे वही है जो बैठ गया ना सोच के कि यार अब से हमसे कुछ नहीं होगा या ऐसा कुछ, बस वो रुक गया। जो रुका नहीं, जैसे आज पूरा दिन आपको कुछ ना, छुट्टी मत लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, ऑब्वियसली यही है। हाँ और बाकी आप जो जो उधर से एज ए क्वेश्चन थोड़ा और ये कीजिए ताकि वो एरिया भी पेनेट्रेट हो जिसपे हम नहीं बोल हाँ पाए हैं। हाँ सर, मतलब ये सब क्वेश्चन के अंदर ही आता है। मतलब हम लोग जैसे अभी रिसर्च करते हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, स्टूडेंट लोगों के दिमाग में, तो उसी से ये सब बातें उठती है जैसे। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ, हाँ। देखिए वही बोल रहा हूँ। देखिए आज जो है ना सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है स्ट्रेस लेवल। बच्चा वन हाँ। क्लास से स्ट्रेस में है। अरे हम्म। भाई, वन क्लास से क्यों स्ट्रेस में हो, 2 3 4 5 सब स्ट्रेस में। 10th में बोर्ड एग्जाम्स आएगा, फिर घर पे बोलेगा लोग बोर्ड एग्जाम्स है, पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया। उसके बाद 12th में पहुंचो, फिर भी बोलेगा लोग कि बोर्ड एग्जाम्स है, इसमें अच्छा कर लो कर लो। हाँ फिर हाँ पहुंचो ग्रेजुएशन में, हाँ, ग्रेजुएशन में बोलेंगे कि इसमें करियर सेट करना है, इसमें बढ़िया से पढ़ लो, उसमें भी बढ़िया से पढ़ लो। हम्म, मतलब ग्रेजुएशन बाद मास्टर बाद PhD में अब हमको बोलते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, इसको बढ़िया से करना, ठीक है। तो हम सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि ये हर क्लास में बोला जा रहा था और हर बार यही बोलना है। उसके बाद आप जाइएगा तो फिर प्रमोशन के लिए होगा कि ये काम बढ़िया से कर लो, प्रमोशन प्रमोशन होगा, फिर ये अरे भाई तो फिर लाइफ जियो जब मर जाओगे तब। राइट सर। तो वो हम कह रहे हैं ना कि डेली के दिन को आप इंजॉय कीजिए। डेली जो है एकदम सुबह उठिए एनर्जी के साथ, अपना पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद शाम में उसका आउटपुट देखिए, जितना अपना हुआ जस्ट उतना ही है। पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं, हम्म। पोथी पढ़ी पढ़ी है ना, कोई है ना, तो हाँ, पोथी पढ़ने की जरूरत है नहीं। जितना दिमाग में जा रहा है बस हम्म। उतना पढ़िए। और एक प्रोफेसर अर्थशास्त्री में क्या नाम है उनका, कैनन कैनन नाम, वो बोलते थे कि अगर भगवान ने एक मुंह दिया है तो दो हाथ दिया है ना, है ना। तो कहने का क्या मतलब था, हाँ, अपने को सोचते हैं कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे मतलब रोटी का आगे दिक्कत होगा ये, तो ये क्यों बोलते हैं। और वो तो बताया है कि भाई एक अगर मुंह है तो उसके बदले में दो हाथ है, मतलब ये कि आपके पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप कभी भी जितना चाहिए वो आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट। हाँ, एकदम स्ट्रेस लेवल जीरो, एकदम चिल मार के, नंबर वंबर कुछ डिसाइड नहीं करता है। थोड़ा दिन हाँ। होता है पेपर वेपर में कि हाँ इतना परसेंट है, कुछ आपके क्या बोलते हैं रिश्तेदार पूछ लेंगे कि हाँ इसलिए कितना है यहाँ हाँ, तक। सही सर। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सर तो हम जानना चाहेंगे कि आप तो बहुत सारी चीजों में अवार्ड आपको मिला है, तो आपका कोई ऐसा लाइक जो आपका रिसर्च था जिस वजह से आपको अवार्ड मिला है, तो हम उस रिसर्च के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। ओके, देखिए एक होता है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस करके प्रोग्राम, कि ये पूरे भारत में प्रोग्राम होता है और हर जिले में जिला इसका एंट्री गेट है, ठीक है। और जस्ट अभी शुरू होने वाला है, अभी 2 दिन पहले हम टीचर्स ट्रेनिंग में गए हुए थे उनको टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ऐसा है कि हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। वही वहाँ प्रोग्राम को संचालित करता है DO। स्कूल में लेटर गया होगा या नहीं गया है तो आप DO से पूछिए, DO ऑफिस से, कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम आया हुआ है, ठीक हम्म। है। और वहां पे जाके पार्टिसिपेट कीजिए। मतलब ये कि वो 2 महीने का टाइम देते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का, आप उसमें भाग लीजिए। फिर जिला स्तर पे होगा, फिर राज्य स्तर पे होगा, फिर देश स्तर पे होगा। आपका प्रोजेक्ट अगर अच्छा होगा तो जूरी मेंबर सेलेक्ट करते करते आपको जिला से राज्य और राज्य से नेशनल भेज देगी। फिर आपका जो है मीडिया कवरेज से लेके सारा कुछ मतलब अवेयर हो जाएगा कि हाँ आपने ये काम किया। तो वैसे ही हम स्टूडेंट किए थे इसमें क्लास 8 में, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम है नेहरू साइंस एग्जीबिशन, उसमें मॉडल बनाना होता है, तो उस कर सकते हैं। या CSIR का एक है इंस्पायर अवार्ड, उसमें भी ये पार्टिसिपेट बोल रहे हैं ना, ये नोट डाउन करके और इसको थोड़ा गूगल कीजिएगा।
तो इसके थ्रू आप सर्च करके। हाँ, तो अब जो मेरा था वो था, मेरा एक प्रोजेक्ट था मूत्र से मोबाइल चार्जिंग। बड़ा खुरापात है। और सोचते रहते थे कि ये सोचना बहुत जरूरी है। मतलब ये है ना कि आप कितना देर पढ़ते हैं उस पे ज्यादा कुछ निर्भर नहीं करता, आप उसको सोचते कितना, मतलब खाने से तो पचना चाहिए ना जितना भी आपके बॉडी का हुआ, है ना। तो वही चीज है, आपने जितना पढ़ा और जो सोच रहे हैं, सोते समय सोच रहे हैं या कहीं टहल रहे हैं, अकेले में बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, तो जो सोचने वाला आपका कंटेंट है वही आपको निर्धारित करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम कितना भी पढ़ लें, पूरा दिन पढ़ लें, और जब बने तो हम सोच रहे हैं कि अरे यार कौन फिल्म लगा है हॉल में, तो हो गया पढ़ाई। तो राइट। मतलब वो पल्ले नहीं गया। है ना। राइट। क्योंकि वो विचार, मतलब जो है ना वो विचार के रूप में होता है। जब अगर आप वाकई काम कर रहे हैं तो वो एज ए थॉट आएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा है, तो वो था मेरा मूत्र से मोबाइल चार्जिंग का। तो हम सोचते थे कि क्या हम प्रोजेक्ट लेके जाएंगे। तो ऐसे ही एक बार दिमाग में आया कि यार कुछ फ्री का एनर्जी रहे, फ्री का एनर्जी तो एसिड वैसिड तो महंगा मिलता, तो हम सोचे कोई फ्री का एसिड मिल जाए। तो हम पढ़े कि घास में बेंजोई, तो घास का एक दिन घोल बना के और उसके ट्राई किए ग्रेफाइट और जस्ता को, जैसे बैटरी में होता है ना हाँ सर। ग्रेफाइट और जस्ता, वो सीरीज में। तो वैसे ही हम घास पे ट्राई, तो उस पे वो नींबू पे तो होता है, लेकिन नींबू हम बोले यार कोई फ्री वाला चाहिए। तो फिर हमको मिला कि यूरिन में यूरिक एसिड होता है, बोले इसी पे ट्राई करते हैं। घर पे बड़ा विरोध होता था, वो घर में घुसने नहीं देती थी, बोलते थे कि दिन भर खाली जो है, मतलब गाय भैंस आदमी जानवर जितना था सबका यूरिन। हमको मम्मी भगाती थी ऊपर, छत ऊपर ही रहो, आप पूरा करके अपना नहा के नीचे ही हो। ठीक है। हाँ, तो वैसे ही हम कर 15-20 दिन तक हमने ऐसे ही किया, और हमने सारे टेस्ट कर लिए कि हाँ अगर ह्यूमन यूरिन है तो वो कितना वोल्टेज देगा, मल्टीमीटर ये सब लेके ये 9-10। तो उस दौरान हम काफी कुछ सीखे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे भी हमको पकड़ हो गया, उस मतलब 10th क्लास में ही हमने 11th 12th का भी नॉलेज आ गया। ठीक है, तो ये था मूत्र से मोबाइल चार्जिंग, मतलब ये काफी था। और सेकेंड था इरिगेशन बाय मिस्ड कॉल। तो यूरिन वाला तो बता दिए नॉर्मल है हाँ। कि हमने तेजाब की जगह पे और प्लस माइनस के रूप में हमने ग्रेफाइट और जस्ता को सीरीज में जोड़ दिया। और उसको लास्ट में कोड में लगाए, और वो पहले आता था एक लेनेवो करके एक फोन आता था, हाँ पुरानी लेनोवो। हाँ लेनोवो। कंपनी। हाँ, तो उस टाइम पे वही था, तो हम उसी को चार्ज करके देखते थे, तो वो चार्ज होता था। तो फिर वही हम प्रोजेक्ट आगे लेके, और पूरा उसका कंसंट्रेशन चेंज होने पे क्या हो रहा है, अगर यूरिन 4 घंटा बाद का है तो फिर क्या हो रहा है, मतलब हमने उस पे अपना अच्छे में आया तो सब लोग खुश थे घर पे अपना। तो वही होता है, कुछ भी आप कीजिएगा ना तो थोड़ा शुरू में विरोध होता है अगर कुछ। अब अभी देखिए, अब सोशल मीडिया पे मतलब क्या, आप लेकिन बता रहे हैं, अभी हम साइंस का शो करते हैं, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं साइंस शो के नाम पे, और बड़ा ये मिलता ये कर रहे हैं, लेकिन मम क्या तुम मजाक करते रहते हो। राइट सर। अरे तो अगर हम सुनेंगे घर पे कि अरे ये एक तो मदारी बोल रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे ना काम को। लेकिन वही चीज है ना कि आप उसको छोड़िए मत को, आपको बिलीव है कि आप अच्छा कर रहे हैं, हाँ कुछ उससे बेहतर हो रहा है समाज को, तो फिर करते रहिए। ऑब्वियसली वो कीजिए। हाँ। हाँ, तो वो था। और एक था इरिगेशन बाय मिस्ड कॉल, अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इरिगेशन बाय मिस्ड कॉल तो आ जाएगा। मतलब वो क्या था ना कि जैसे मिस्ड कॉल करने पे बोरिंग समझता था कि उन्होंने चालू कर दिया पंप सेट और घर पे चल गए उसने, और फिर रात में उठ के जाना पड़ता था बंद करने। तो फिर हमको दिमाग में आया कि ऐसे मोबाइल में अगर कॉल किया जाए तो पहले से तो मोबाइल एक्चुअली लेकिन जब कॉल करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेट है, हाँ। स्क्रीन का लाइट जलता है। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर का जो वाइब्रेटर वाला मोटर था, तो उससे 1.5 वोल्ट बाहर निकाल दिया कि जब कोई वाइब्रेशन मोड में फोन रहेगा और जब कोई कॉल करेगा तो वो 1.5 वोल्ट बाहर सप्लाई आ जाएगा। हम्म। 1.5 वो स्विच 1.5 वोल्ट जाके ऑन कर दो। कितना सिंपल है ना। तो हाँ। अगर अब आविष्कार, एडिसन का बल्ब का आविष्कार, अब इतना भारी, लेकिन नो कुछ नहीं किया उसने, 2 तार लिया। अगर आप बैटरी में भी देखिए प्लस माइनस में सटाते हैं तो वो तार हीट हो जाता है, जलने लगता हाँ। है हाँ ना। सर।
या फ्यूज भी, बस वो नॉर्मल चीज है। उसने क्या किया कि वैक्यूम कर दिया कि भाई ये जो जल जा रहा है ना, तो कुछ ऐसा गैस रखें कि ऑक्सीजन मतलब जल ले, लेकिन वो जल की टूटे नहीं, पूरी तरह से वो बर्न ना कर जाए, ठीक है ना, वो लाइट केवल ये करे। तो बस उसने ऐसे दिमाग में, तो ये है कितना सिंपल चीज, लेकिन उसने इस तरह से सोचा। तो कोई आविष्कार करना और ये मतलब बहुत टफ लेवल का काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, कुछ भी जो भी इधर उधर चल, अभी ऐसा ऐसा पेटेंट है, जो सेफ्टी पिन है, जो पिन वगैरह लगाते हैं, साड़ी हाँ पिन भी होता है ना safety, हाँ सर। तो वो भी पेटेंट है, वो भी पेटेंट है। तो उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हाँ तो इस तरह कुछ भी पेटेंट हो सकता है जो मतलब समाज में कुछ काम का है। अब सेफ्टी रेजर, रेजर दाढ़ी बनाने वाला है, तो हाँ उसमें कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन उसने नहीं। किसी ने सोचा कि हाँ कुछ ऐसा होगा और ऐसे ही कर, ऑब्वियसली। तो ऐसे ऐसे कर करके जो है कुछ कुछ आविष्कार होते रहते हैं। जरूरी नहीं है, देखिए आज सारे सब्जेक्ट जो में सब्जेक्ट मान लीजिए कि हिस्ट्री है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मन किया कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, तो आप ले सकते हैं, हाँ ठीक है। सर। भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब भारत में भी ऐसा हो रहा है, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो कोई भी कहीं किसी सब्जेक्ट जंप कर सकता है। तो नई शिक्षा नीति में ये चीज है, तो इसलिए आप सोचने की जरूरत नहीं। अब कोई पूछेगा नहीं कि आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, और अब ये राइट ट्रेंड सर। खत्म होते राइट सर। हैं। अब हम बड़ा ये करते हैं कि भाई देखिए, जो संस्कृत का बढ़िया जानकार है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, जो हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री जानता है वो संस्कृत नहीं जानता। अब बीच में गैप क्रिएट हो गया। अगर कोई एक पर्सन फिजिक्स भी जानता है, संस्कृत भी जानता, तो वो वेदों में क्या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसको वो बाहर ला सकता था। हाँ लेकिन वो तो गैप हो गया। वो ऐसा एजुकेशन पॉलिसी पहले से चला कि जो वो जानता है वो ये नहीं जानता। तो जो वेदों में या शास्त्रों में कोई टेक्नोलॉजी अगर होगी भी, जो संस्कृत पढ़ता है तो वो साइंस वाले परसेप्शन से सोच नहीं पाता है उसको। राइट। तो इसलिए ये जो बैरियर है ना, ये तोड़ना बहुत जरूरी है। और हम ये नहीं चाह रहे हैं ना कि कोई आगे बोले कि हम साइंस के विद्यार्थी, हम आर्ट्स की। ये क्या होता है साइंस के और आर्ट्स के? नॉलेज नॉलेज है, ये साइंस आर्ट्स नॉलेज। क्या देख के हाँ सर। मतलब। अगर अगर कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसको बुखार नहीं लगेगा? तो बुखार लगेगा तो तुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सा चीज हम घर पे मेडिसिन। यूज करके बुखार ठीक हाँ करें। हाँ राइट। राइट सर, वही चीज होती है। और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हर हर मतलब आप कुछ भी करो, हर चीज में साइंस आर्ट्स बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सबसे हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है। और बट ये बात आप सही। कितना, सर। हाँ सही बात है। वो आपका कितना भी जानते हो, साइंस का पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स सारा कुछ जानते हैं, ठीक है, आ रहे हैं आपको सोशल नॉलेज नहीं है, हिंदी अंग्रेजी भाषा या सोशल सोशियोलॉजी बोलते हैं ना, पब्लिक मैनर, वो नहीं है, हाँ। तो आप कहीं भी कुछ भी बोल दीजिएगा। अब तो वो भी तो गड़बड़ है हम्म। ना। तो सर अभी आपने तो इतना सारा रिसर्च किया है, तो अभी बताना चाहेंगे आपके आपका न्यू अपकमिंग कुछ रिसर्च जो आप कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं करने के लिए? एक्चुअली अभी जो पीएचडी में हम करेंगे, हमने हम्म। तो सोचा था आर्सेनिक पे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ जब आया ना, तो फिर हमको बोला जो कि जो आप पैशन पे काम करते हैं, जो साइंस हो आपका पैशन है, आप पीएचडी इसी में कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, और आईआईटी हाँ थोड़ा इसमें छूट देता है, ठीक है। हाँ सर। तो अभी हम उसी पे करेंगे रिसर्च कि साइंस कम्युनिकेशन में कौन सा मेथड लाया जाए, या साइंस को ऑन और कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट डेवलप किया जाए कि जो बच्चा उसको बोरिंग समझता है उसको और इंटरटेनिंग। मतलब हम चाहते हैं कि साइंस को एज ऐसे सब्जेक्ट के रूप में ना, कि जैसे आदमी बैठ के फिल्म देखता है, ठीक है। हाँ अगर हिस्ट्री में किसी को हम सम्राट अशोका फिल्म दिखा दिए, या कोई दिखा दिए, पृथ्वीराज चौहान दिखा दिए, तो वो एक्चुअल में हिस्ट्री पढ़ लिया है, लेकिन उसको लगा कि हम तो फिल्म देखे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम साइंस का कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करना चाहते हैं कि वो डेली में वो देखे और उसको, लेकिन उसको लगे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ भी जाए। ओके। तो सो कुछ ऐसा डेवलप करना, हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर योर न्यू लाइक अ न्यू रिसर्च। आई, मेरे को इतना पता है कि अगर आप ये लिख के आएंगे तो जरूर आपको फिर से कुछ ना कुछ लाइक अवार्ड मिल ही जाएगा, बिकॉज आपका हर रिसर्च बहुत अच्छा होता है सर। मैंने बहुत अच्छा चेक भी किया है, वो एक ऑफिशियल साइट था आपके उस पे, तो मैंने वहां पर चेक भी किया था, वो सब पढ़ा था मैंने। तो सर आप एट द एंड बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इन द साइंस? देखिए हम ये बोलेंगे ना, बी जेन्युइन,
जेन्युइन रहिए। और ये नहीं कहीं कुछ बनने की जरूरत, जैसे हम आपको छोटा सा दे रहे हैं, अगर आप जेन्युइन है तो क्या होता है, लेट नहीं हो रहा है ना, बोल सकते हैं ना। नहीं नहीं, हाँ सर बोल सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए अभी क्या है कि ज्ञान भवन में जो बिहार चेंज मेकर अवार्ड हमको मिलना था, तो हम गए हुए और वहां पे हम वेल ड्रेस, क्योंकि बड़ा मंच है तो थोड़ा वेल ड्रेस ही जाना चाहिए, कोट पैंट टाई वाई सब था। और हम देखें तो वहां जैसे ही खाना मिला सब लोगों को, तो सारे लोग खड़े होके खा रहे हैं और बहुत देर से खड़े हैं लाइन में, फिर ऐसे वैसे कोई बैठ नहीं रहा है, बैठने का पूरा बड़ा जगह था, कोई बैठ नहीं रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं खाने में भी बन नहीं रहा है, प्लेट इतना भारी और इधर से लटक रहा है, ऐसे ऐसे ज्यादा आइटम्स, रसगुल्ला चले तो सही से बन, बैठ कोई नहीं रहा है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सबसे आराम से पालथी मारे सब, कोट पैंट पूरा उतना में टिप टॉप में दिख रहे थे हम ही, ठीक है। हमने मारा और आराम से सब चम्मच, हमने अपना आराम से उसको हाथ से खाना शुरू किया, पहले एक और दूसरा व्यक्ति फिर तीसरा व्यक्ति, ऐसे पूरे ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि बी जेन्युइन, आप जेन्युइन रहिए ना, पूरा मास जो है ना आपको फॉलो करने लगेगा। एक थोड़ा सा छोटा सा उसी तरह से हम एक बार रेलवे स्टेशन पे गए थे, तो सारे लोग खड़े थे, ट्रेन आने में 2-3 घंटे लेट, बैठ कोई नहीं रहा, हम आराम से वहीं बैठे, सारे लोग धीरे धीरे बैठे। तो वही चीज आप में जो है ना, इनिशिएटिव लेने का ये होना चाहिए, दिस इज लीडरशिप। ठीक है, यस सर। ये छोटा सा उदाहरण क्या, लीडरशिप दिखा। आप जैसे मान लीजिए कोई कुछ खा के छिलका वलका चाहे कुछ भी, कुछ उसको मत बोले कि उठाओ, ईगो पे ले लेगा, कुछ नहीं करना, उसके सामने आप उठाइए और चुपचाप कूड़ा में डाल दीजिए, फिर देखिए वो हाँ, तुरंत उसका आएगा ईगो बोले हर्ट हो जाएगा। हाँ सर, राइट सर। ठीक है ना। तो वो हम बोल रहे हैं ना कि अपना जो विद्वत्ता या ज्ञान है वो एग्जाम में दिखाने के चक्कर में मत रहिए, वो आपके बिहेवियर दिखना चाहिए। वो खुद ही आगे पूछने लगेगा कि भाई आज तक मैं ऐसा, वो इतना ना इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना आपसे। हाँ सर, राइट। हाँ तो हाँ तो वही हम बोल रहे हैं कि आपसे हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपका नॉलेज आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए, ठीक है। और कहा जाता है ना, विद्या विनयम ददाति। तो हाँ सर। विद्या अपने को इतना, ये इतना विनम्र बनाइए कि सामने वाला आप पे कितना भी, क्या है ना, हमसे तो झगड़ा किसी का होता नहीं, क्योंकि सामने कितना भी क्रोध में आए पले आएगा तो हम उसे नहीं बोलेंगे, तो अब थोड़ी अब हमसे वो झगड़ा कर। तो हम्म। ये सबसे बढ़िया है किसी भी सिचुएशन को डील करने का। और पढ़ाई को बिल्कुल टेंशन के रूप में मत लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए कुछ। और पूरा दिन में शाम को कंक्लूड कीजिए कि आप क्या सीखा। सोते समय रोज एक बार पूछिए ना कि आज पूरे दिन आपने क्या सीखा, ये काम भाई आदत में डाल दीजिए। आपने आज क्या सीखा, रोज बेड पे जाने से पहले एक बार अपने से पूछिए कि आपने क्या सीखा। इतना ही करना है, ठीक है। मार्क्स कम आ जाए ज्यादा आ जाए कुछ आ जाए कोई मतलब नहीं है, मार्क्स कौन देखता है। हम अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, बस पास हो गए ना 30%, रहता है पूरा मोहल्ले में मिठाई बटोर हम पास हो गए। कितने 99% लाके और दुखी है कि 1% नंबर क्यों कट गया। गजब राइट। भाई, क्यों दुखी हो। राइट सर, नहीं सर। तो हाँ। तो यही है कि बी हैप्पी, और एकदम चिल मार के एकदम आराम से पढ़िए। और बाकी फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, कहा गया है ना एक संस्कृत में कि गते सोको न कर्तव्य भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। यानी जो बीत गई ना, गते शोको न कर्तव्य, जो बीत गया उसका चिंता ना करो, शोक ना करो। और भविष्य, भविष्य की भी चिंता मत करो, तो किस बात की चिंता करो, वर्तमानेन कालेन, वर्तमान काल में प्रवर्तन से विचक्षण, बुद्धिमान लोग जो है ना वर्तमान काल में विचरण करते हैं। बस आज आज का रूटीन, आज क्या करना है, हो गया। एकदम जेन्युइन रहिए, आप जैसे हैं, इट्स ओके। और अलग जैसा बनना है इनके, ऐसा किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ हम्म। ठीक है, दो चार अगर आप क्या बोलते हैं रोल मॉडल, लेकिन किसी को किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। जैसे राइट। अगर हम मनोहर कुमार हैं तो हम क्यों सोचे किसी जैसा बने, हम मनोहर की तरह ही बने, खुद जैसा हाँ। बने, हाँ है ना। सर, राइट राइट। तो हाँ यूनिक बनेंगे ना। जैसे बच्चे बच्चे बोलते हैं कि हमको विवेकानंद की तरह बनना है, क्रिकेट में बोलता है हमको विराट कोहली की तरह बनना है, इट्स ओके ठीक है। लेकिन तुम उनके जैसा क्यों, तुम जेन्युइन रहो ना, हाँ। कि तुम अपना कुछ यूनिक बन जाओ, है ना। कि और लोग बोलेंगे हमको ये बनना है, ठीक है ना। तो हाँ वही चीज है कि अपना जेन्युइन रहिए और जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि आपका एक्सपर्टीज किसी अन्य फील्ड,
और आप ट्राई किसी अन्य फील्ड पे कर रहे हैं, तो आप फिर अंडर परफॉर्म करेंगे, है कि नहीं? राइट सर। अगर कोई एक बेहतर धावक है और वो इतना छोड़ के और मैथमेटिक्स में फंसा हुआ है, तो फिर वो तो लाइफ में एवरेज ही हो, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अभी क्रिएटिविटी निकल के बच्चा कर रहा है, कोई डांस कोई ये, उसको उधर बहुत सारा यूट्यूब के थ्रू अर्न कर करके अमीर भी हो गया है ऐसा, है ना? लेकिन अगर उसके पीछे वो लगा रहता है, तो फिर होता नहीं, होता है। कोई आप नाम नहीं जानते जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बस जो आपको करना है एकदम फ्री, फ्री, क्योंकि पूरा जीवन जो है आपको ही, क्योंकि अब देखिएगा, एक डॉक्टर थे, नाम नहीं याद आ रहा हमको, तो वो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर थे, ठीक है? हम्म। और जब वो रिटायर हुए ना, तो बहुत नाम था उनका कि भाई आप बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं हार्ट के। तो जब वो रिटायर हुए तो बड़ा दुखी थे अपने रिटायरमेंट के दिन। तो पूछा लोग कि भाई अब दुखी क्यों है, इतने फेमस डॉक्टर, आपको देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, अब ऑपरेशन कराने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। बोले एक्चुअली में हमको डॉक्टर बनना ही नहीं था, हमको बनना था डॉक्टर। ठीक है, हमको नहीं लगता था। तो बोले कि आपको तो नाचते हुए नहीं देखे। बोले अरे यार तुम नहीं देखोगे, जब भी मैं ऑपरेशन करके जाता था रूम बंद करके खूब डांस करता था। ठीक है? तो वो देखिए, वो आदमी जो है इतना नेम फेम होने के बाद भी जीवन के अंतिम दिनों में वो दुखी है, ठीक ना? तो ऐसा होता है कि अगर आपको बनना है कुछ और, जैसे हम बोर्ड में टॉप बोलता है लोग घर पे कि तुम आईएएस वाईएएस बनो यार, या क्योंकि मेरे मामा भी कि इतना ज्यादा फील्ड पे पकड़ है, सारे सब्जेक्ट्स जानते हो इतने सारे, मतलब संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैथ साइंस फिजिक्स हिस्ट्री सब, तो ये तो आईएएस के लिए है। हम बोले नहीं, हमको वो बनना ही नहीं है ना। हाँ। क्यों? हमको रहना है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि हमको बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, तो हम अपना हम्म। जेन्युइन चीज देखते हैं कि हम कहाँ से हाँ सर। दुखी हैं कि आइए लेता है, उसको क्या कमी रहता है भाई? उसको अच्छी है, पावर है, गार्ड्स है, तो हम्म। एक्चुअली में उसको आईएएस बनना था नहीं, अब किसी ने कह दिया या कुछ सोशल प्रेशर में वो बन गया, उसका कोई पैशन और होता है। तो यही देखने को आपको अगर लोग बन भी जाते हैं ना, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर सक्सेस का कोई अगर हमसे परिभाषा पूछे कि है, यही बोलेंगे कि जिससे अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, वही सक्सेस है, ठीक है? राइट सर। इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, ठीक है? अगर हमको एक गाड़ी लेके और हमको हुआ मिल गया कि अरे वाह, तो सक्सेस हुआ, ठीक है? और तो वही है कि जिस जो काम करके आपको फील हो कि हाँ ये काम हमने कर लिया, वो सक्सेस है। आपको किसी के लिए सक्सेस, एक दरोगा का नौकरी है, उसको लगता है कि वो मिल गया तो सक्सेस है, इट्स ओके, उसका उसी में सेटिस्फेक्शन है, हाँ ठीक सर। है? तो कोई जो है आईएएस बन के कहता है यार जीवन में कुछ किए नहीं, हमको सेक्रेटरी बनना था, तो वो सक्सेस है। मतलब हाँ। सक्सेस मीन सेटिस्फेक्शन, इसी का बिगड़ा हुआ या बदला हुआ रूप को हम सक्सेस बोलते हैं। हो गया ये तो, यही पूरा है। जैसे बोलते हैं लोग ना कि हम सफल है, नहीं है, सफलता कोई पैमाना थोड़ी होता है। संतुष्ट हो, सफल हो, सन्यासी हैं अब, घर द्वार छोड़ के और पूरा जाके उनको उसी में ये है, तो वो सफल है क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया, हो गया। है ना? राइट सर, टोटली राइट। तो ये सक्सेस का परिभाषा है, क्योंकि हम बहुत सारे जो साइंसों में या ऐसा बहुत सारा पूछता है लोग कि सक्सेस क्या है, कोई अच्छा जॉब, नहीं नहीं नहीं, जॉब वॉब कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही सक्सेस है। अगर आप अभी सेटिस्फाइड है, यू आर सक्सेस, सक्सीड पर्सन। राइट सर। नहीं सर, आपने जो भी कहा एट द टू द पॉइंट बहुत सही कहा, क्योंकि ये सब अभी लोग लाइक खुद से रिलेट कर पाएंगे। जो चीज आपने कहा, ये सब चीज जो जितने सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे ना, वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। बिकॉज आपने एक एक जो बात कही है अभी तक, जो एग्जाम्पल दिया है, उन सबसे उन लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, और देखिए सबसे मेन चीज जो है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से दिया गया है कि आदमी को जो है रहना कैसे है, जैसे लाइफ स्टाइल के बारे में एक बुक, बहुत पहले का अगर आप बुक देखिए, तो वो लाइफ के बारे में कि आपको सुबह में कब उठना है, ब्रश करना
करना है या मतलब आज जितने डिजीज है ना वो इसी कारण है कि उसको पता ही नहीं लाइफ स्टाइल, और जो कि ये सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जान गया पूरा हिस्ट्री है लेकिन उसके काम का वो नहीं जान रहा है कि सुबह ये उठना चाहिए। तो भाई अब जितने जो चश्मा वगैरह ये चढ़ रहे हैं तो ये लाइफ स्टाइल के कारण ही है। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है और मॉर्निंग में उठ के और अगर घास का मैदान है आसपास, ठीक है, तो घास के मैदान पे वो खाली पैर अगर 15 मिनट डेली चले तो ये देखिए ये चीज में उसको नहीं मिलनी है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से उस तक पहुंच जाए, ठीक है ना, ये बुक्स में नहीं मिलेगा उसको, इसलिए नहीं तो सर। वो खाली पैर अगर चले ना तो उसको कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन हम बता रहे हैं, हमको चश्मा एक डॉक्टर लिख दिया था थोड़ा दिन के लिए, तो हम जैसे ही पहने आंख में दर्द हो गया, हम निकाल के रख दिया, हम बोले हम नहीं पहनेंगे, तुरंत पुराना हम देखे क्या कैसे आंख सकता है। तो उसके बाद हम आंख का एक्सरसाइज होता है, नजदीक देखिए दूर ऐसे, और ABCD ऐसे कुछ लिखिए, मतलब चाहिए और पूरा ये घूमना चाहिए ताकि जो साइज चेंज हुआ है ना वो फिर उससे अपने साइज में आ जाए। और फिर हाँ 1 मिनट नजदीक देखिए, फिर 1 मिनट दूर देखिए, है ना। और फिर पहले आप देखेंगे कि पहले के लोग जो सोते थे तो रात में पैर के तलवा में सरसों का तेल मालिश करते थे, हाँ सर। और हाँ। नाभि में भी। हाँ, तो हाँ। आज भी ये उतना ही कारगर है। अगर कोई जो है सरसों का तेल जो है वो नाभि में और पैर के तलवा में और ये यहाँ इस पे भी हाँ। ये करके और रात को सोता है, और पे भी, तो उसको अलग से कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल, उसका चेहरा ऐसे ही ग्लो करेगा जो हम बताएं, ठीक ना। हाँ। और हम ये भी, और आप भी ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि आज नॉलेज लेके जाइए तो अप्लाई कीजिए, ठीक है। नहीं और सर। मॉर्निंग में, हाँ, मॉर्निंग में उठ के और बाहर निकले और तुरंत पूरा जीवन अंदर फूक फूक कर बाहर फेंक दिए कुल्ला करके, उसको पी जाए, ठीक है ना, क्योंकि अंदर जितने एंजाइम बने होते हैं में जाएंगे ना ज्यादा एकदम तगड़ा काम करेंगे, ठीक है। और अगर किसी का बात करूंगा तो वो अगर मम्मी के पानी पिए तो उसका का बर्तन में रख दे, और मॉर्निंग भी साइंस की बुक में एग्जाम पर्पज से तो है नहीं, तो ये पढ़ाया नहीं जाता, नहीं सर। पढ़ा देना चाहिए। हाँ, तो ये चीज है। तो ये सारा लाइफ स्टाइल का है। और बाकी सुबह में तो बिल्कुल चाय वाय ये सब पीना ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पेट में पूरे रात में इतने होते हैं ना उस तो पर फ्रूट्स और ऐसा कुछ ये सब ले, फ्रूट्स या कोई एकदम हाइजीनिक और दूध हो गया इस टाइप, तो वो बहुत कारखाना वाना है ये सब। सुबह में चाय पीते हो एकदम रेडी है, उसको तुम गड़बड़ कर दिए तो वो क्या होगा। इतना जो हम बताए ना इसको खाली अगर फॉलो करे कोई, तो पहले हाँ। मेंटल हेल्थ, उसके बाद जो है एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल सुबह में करना चाहिए। बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा ना तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है माइंड में, और हाँ। रिसर्च भी ये कहते हैं, ठीक हम्म। है। हम्म। तो हाँ, तो बच्चों को चाहिए कि सुबह उठ के चाहे एग्जाम क्यों नहीं 15 मिनट या 10 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी पसीना, ठीक है। हाँ सर। एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ जो है, हमारा कोई नहीं सकता। और दूसरा चीज, जितने मतलब एजुकेशन सिस्टम है इनसे ये सारा चीज दूर, अरे स्वस्थ नहीं रह से पड़े, ठीक है ना। पहला चीज, अगर आप स्वस्थ हैं तो भाई 100 में 100 तुम आता है खुश हो तो एक सब्जेक्ट होता है तो ऑलरेडी उसमें 100 नंबर आपके पास होना चाहिए, ये एक, हाँ, राइट तो सर। खुशी वाला मस्त रहना। उसके बाद आप पढ़ाई देखिए ना, एक कीजिएगा और बाकी के 10 घंटे के बराबर आप रिकवर। हमने इतने सारा चीज कैसे पढ़ लिया, क्योंकि हमारे पास भी 24 घंटे है ना भाई, हमारे लिए तो अलग से तो बना नहीं कोई, तो उसी में हमने कैसे कर लिया है, वही कैसे किया, अपने को फिट रखा। अगर प्रोडक्टिव आप रहिएगा ना तो जो एवरेज बच्चा लाइफ स्टाइल है, जो मेमोरीज में जाने के लिए सीखेगा, वो कंसंट्रेटेड जो आदमी है वो 1 घंटा गेन कर लेगा, ठीक है। राइट। तो ये स्पीड बढ़ जाता है,
एक्चुअली होता यही है कि स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर जो एवरेज आदमी को या जिसका लाइफ स्टाइल खराब है उसको सीखने में अगर लगता है 3 घंटा, वो आप देखो 20 मिनट, या आपका याद किया वो बहुत लॉन्ग टर्म तक टिकेगा, है ना। राइट सर। लाइफ एकदम बदल के पहले खुश अगर आदमी है ना भाई, हम तो देखे हैं, अगर आप खुश रहिए उस टाइम पे कोई पढ़ाई कीजिए तो वो ये होता है। दूसरा चीज है कि चूंकि आदमी का जो सभ्यता का विकास हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो वो ज्यादा टाइम घूमते फिरते आदमी रहा है। मतलब ये कि अभी 10,000 साल में ना ये घर वर बने हैं। हाँ। बाकी जितने पहले 1 लाख साल पहले जो सिपियंस, तो 90,000 साल जो है वो मूव करते थे जब नहीं हो रही, वो खोल लीजिए और आप बैठिए मत, और मूव करके पढ़िए और मेमोराइज कीजिए कि वो जल्दी याद हो जाएगा। क्यों? हाँ। क्योंकि 90,000 साल से आदमी कोई चीज मूव करता है तो उसका माइंड जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है, होता है ना। तो उसका माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। जैसे अगर हमको कोई चीज याद करना है, अगर हम ये घूम रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं ऐसे, तो ठीक है ना, तो इस ढंग से वो ज्यादा मतलब ये भी याद करने वाला ठीक है ना। इस तरह से अगर कुछ भी अगर पूछना है किसी भी फील्ड में, तो ऑब्वियसली हम फ्री टाइम अगर रहेंगे तो जरूर उनको तो ये कही कि जो हमारा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, ओके नीचे सर। कमेंट को अप्रोच करना तो बिल्कुल कोई दिक्कत, अच्छा लगेगा। पढ़ाई का क्या मतलब है जब जब बिहेवियर में नहीं दिखता है, उस पढ़ाई का क्या, इतना मोटा राइट। मोटा इतना चढ़ा लिया राइट सर। कुछ टोटली पढ़ा राइट। या नहीं पढ़ा, ही खराब। हाँ। राइट सर। वो चीज उसको इम्प्रूव करने की जरूरत। तो अब लगता है सेशन खत्म करना चाहिए, है ना। हाँ सर, बट बहुत ही अच्छा सेशन था। मतलब ये लगता है कि एक दिन से मतलब पूरा बात हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपने जितना सारा कुछ बोला है कि ये सब मैं चाहूंगी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी कि वो सब फॉलो करे उनके माइंड के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ये सेशन फिलहाल तो अभी एंड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, आपने एक एक जो बात बताई है बहुत सही लगा हम सबको, और आई थिंक स्टूडेंट विल फॉलो दैट। एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू सर कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, लाइक हम सब के लिए जो इतना इनोवेटिव चीज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम फॉर योर बिजी शेड्यूल टू गिव अस सम टाइम सर। थैंक यू, हाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।